So in today's class, we will see some basic laws, that is Newton's laws of motion. Newton's law of Newton's laws है ना, 2 3 है ना, इसलिए Newton's laws of motion. Okay, right. So who will tell me what is the first law? Law of inertia. Law of inertia. Inertia. Inertia means A tendency of an object to stay in its position or keep going or keep moving. okay. So can I write like this? See, first law, and this is called law of inertia. What is it called as? Law of inertia. तो ये क्या है? The tendency of body, the tendency of body to be in its initial state. Initial state क्या है? इनिशियल स्टेट जो भी हो, जैसे कि अभी आपको एक जनरल एग्जांपल बोलता हूँ, Rest position. है ना। जैसे कि आप देखो, आप एक एग्जांपल में बोलता हूँ, जनरल एग्जांपल, it is very easy, it is very easy to stay awake till night 12, but it is difficult wake up at 6 in the morning. So yeah, na? Yes, sir. Why? Because our body is in a state of motion. If our body is in state of motion, body likes to be in its state of motion only. Once we are sleeping, our body will be rested, not rest in peace. Okay, body will be in rest, right? So it likes to be in that state only, yes or not? It will be in state of rest only, right? So Yes, sir. it is very difficult to change the state from rest to motion, है ना? It is very difficult. That's why we can't get up in the morning, early in the morning. Sir, you tell us we will watch movie till 2 o'clock, 3 o'clock also, from 9 p.m. to 2 a.m. also, 3 a.m. also. Yes, but morning once we slept means it is very difficult. Yes, this is what law, है ना? That is what law of inertia. So yeah, na? The tendency of body to be in its initial state, right? Yes, समझ sir. में आया? Sir. Yes. Now Yes, is you are having 3 laws, sub laws we can say. First one is inertia of rest. Inertia of rest. क्या होगा बोलो?
body likes to be Stay at rest position. yes in state of rest. हम जब सो जाते हैं ना ये देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। हाँ ये देखो ये सो गया है, ये सो गया है ना, ये लाइन मीन्स स्लीपिंग आईज। ओके कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. तो ये लाइन Yes, का sir. मतलब होता है स्लीपिंग आईज। तो इट इज इन ही इज इन रेस्ट और व्हाटएवर। तो ये कैसे स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो अब इसको उठने को बोलो, मम्मी 1000 बार बोलेगी अरे बेटा उठ जाओ उठ जाओ, वो उठता है क्या? No, sir. No, sir. Yes, so that is what inertia of rest. Understood? Inertia of rest means body likes to be in the state of rest only. For example, जैसे कि अब देखो एक एग्जाम्पल लेंगे, कौन बोलेगा एग्जाम्पल इसका? बोलो बोलो। When bus starts from rest, the passenger moves in backward direction. है कि नहीं? ये तो है ना, ये किसकी वजह से है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से है। सही है ना? यस और नो? बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है देखो, सेकंड वन, inertia of motion. Inertia of motion. अब क्या लेंगे इसको, क्या बोलेंगे? बोलो बोलो। Body tends to stay in motion. Yes, body likes to be in state of motion. मतलब जो ऑलरेडी है उसका ओरिजिनल स्टेट, बॉडी लाइक्स टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। मीन्स उसको मोशन से दूसरे स्टेट में चेंज होना पसंद नहीं है। इट डज नॉट लाइक टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, है ना? जैसे कि समझो कोई घर में है, ठीक है, तो अगर घर में बैठने की आदत रह गई तो आपको बाहर जाने को अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको बाहर जाने की आदत है तो घर में आने की आदत नहीं लगेगी, है ना? मीन्स दैट इज व्हाट टेंडेंसी वी कैन से। So body likes to be in state of motion. इसका एग्जाम्पल कौन बोलेगा? बोलो बोलो। एक एग्जाम्पल कौन बोलेगा? When the bus stops after moving, the passengers move in the forward direction. फॉरवर्ड ना, बैकवर्ड ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड। यस, when बस ड्राइवर, बुश नहीं है ये, बस है वो ना, बस ड्राइवर applies brake, passenger moves in फॉरवर्ड डायरेक्शन। सही है ना? कहाँ पे जाएगा वो? आगे, है कि नहीं? और इसकी वजह से ही बहुत सारा गोड़वा होता है इसी की वजह से, यही है ये न्यूटन्स का जो लॉ है ना, ये वाला, इसी की वजह से ही गोड़वा होता है, हैं? बहुत सारा गोड़वा होता है कि नहीं? मालूम है? Why, sir? कि फसाद यही है, ये लॉ। एग्री विथ मी? यस और नो? Yes, sir.
Yes, sir. धक्का क्यों मारा, है ना? धक्का क्यों मारा तूने बाबा, हाँ? यस। और उसके बाद क्या क्या होता है आपको मालूम है कि नहीं? एग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is what? This one, inertia of motion. Okay, right. हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। और जो अपना तीसरा लॉ है, इसी का जो Inertia of direct. क्या होगा? Inertia of direction. हाँ, ये जो तीसरा है वो है inertia of direction. हाँ बोलो। Body like to be in its initial direction. जिस बॉडी और जिस डायरेक्शन में ये बॉडी मूव हो रही है उसी डायरेक्शन में उसको जाना पसंद है। कौन बोलेगा इसका एक एग्जांपल? यस, कैन एनीवन टेल मी द एग्जांपल ऑफ दिस? बोलो। Dog chasing. यस, When we run in zigzag position, the dog can't chase us. when we run in zigzag position, The dog can't chase us. the dog can chase us. Okay. ठीक है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? At turning roads, at turn, passenger moves opposite side, है ना? At turn road, passenger moves opposite side. तो ये कि नहीं है? ये क्या है? inertia of direction. क्यों? क्योंकि जब एक डायरेक्शन में बस मूव हो रही होती है, इधर को देखो, एक डायग्राम दिखाता हूं आपको। ये है अपना बस, है ना? यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो खिड़कियां ही खिड़कियां है इसको। ओके, यहाँ पे ड्राइवर मामा बैठे हैं और यहाँ पे ये सारे पैसेंजर। तो अब ये जा रही है, बस जा रही है। अब ये नुक्कड़ आएगी। यस, अब ये टर्न हो रही है। जब आप बस यहाँ पे होती है ना? जब ये बस यहाँ पे आती है जो कि ये टर्न ले रही है, तो इसमें जो पैसेंजर बैठे हैं वो उस तरफ ऐसे पुश हो जाएंगे, है कि नहीं? उस तरफ, दैट साइड। अंडरस्टूड? ये जो है वो क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, क्या sir. है? Yes, कोई sir. डाउट है? कोई शक Yes, है? sir. दिस इज व्हाट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, अंडरस्टूड, राइट। कोई संदेह है? No, sir. No, sir. ये राइट, क्लियर। अब जो सेकंड लॉ है वो क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ। Net force is equals to mass of an object into its acceleration. न्यूटन्स सेकंड लॉ। Law of momentum. हाँ, Force applied on an object is equals to mass of an object into its acceleration. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ?
the rate of change of momentum is directly proportional is directly proportional, to applied force. yes, directly proportional to applied force, we can say. So, है ना? So this is nothing but dp by dt is directly proportional to F, and therefore I can say that this F is equal to k into dp by dt, where this क्या बोलते हैं, dp is what? Change in momentum. m क्या है? p क्या है? p is equal to momentum. मोमेंटम का मतलब क्या है? मास इनटू वेलोसिटी. ओके, अब ये F इज इक्वल टू हमें आ रहा है k इनटू dp, मतलब चेंज इन मोमेंटम. इनिशियली सपोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, and after some time that object is moving with velocity v, then can I write like this? mv minus mu divided by t. Can I write like this? Yes, sir. And therefore F is equal to k into m common v minus u by t. अब हमने और एक फॉर्मूला देखा है कल काइनेमेटिकल इक्वेशन में, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. तो ये v माइनस u बाई टी इज इक्वल टू a. तो F is equal to k into ma. If k is equal to 1, then F is equal to how much? MA. 1 Newton. F is equal to ma. Understood? Yes, Yes, sir. sir. Clear है? Yes, sir. Sir, can you explain one? Yes. One more time you want. See, the rate of change of momentum is directly proportional to applied force. Okay. dp by dt is directly proportional to F. अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करके एक कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज k. F is equal to k into dp by dt. dp means what? ये देखो, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा इलाबोरेट करता हूँ आपको. अज्यूम करो कि ये जो एक ऑब्जेक्ट है या तो एक बॉल है, ये एक ऑब्जेक्ट है समझो, इसका मास m है. इनिशियली ये u से जा रहा था, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो है m इंटू u. अब फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका जो वेलोसिटी है वो हो गया v और मास है m, है ना? तो अब ये जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या होगा? mv. फॉर दिस प्रोसेस हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड? t. तो अब यहाँ पे डेल्टा p है, dp मतलब डेल्टा p है समझो, डेल्टा p मतलब चेंज इन मोमेंटम. तो mv माइनस mu क्या होगा? m इंटू v माइनस u. और डेल्टा टी जो है वो कितना होगा? डेल्टा टी मतलब क्या होगा? इनिशियली स्टार्ट से स्टार्ट किया था तो टी, तो बस सब्स्टिट्यूट करो, डीपी के जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करो और ये dt के जगह पे t सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट दिस वैल्यूज. अंडरस्टैंड? अब क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? आप समझ में आया? यस, अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. K means proportionality constant. K is for proportionality constant. Okay. Right. चलो आगे बढ़ते हैं. हो गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Right. अभी जो तीसरा लॉ है वो क्या है? What is the third law? कौन बोलेगा? Every action has Every action has an equivalent and opposite reaction. Yes. Every action has equal and opposite reaction.
every action has equal and opposite reaction. इसका एग्जाम्पल क्या है? इफ यू आर किकिंग द वॉल, वॉल विल किक यू yes. If you kick a ball, the ball will come. Ball With will the not same kick you force. because it don't have legs. Okay. हाँ, यहाँ पे देखो ये गोलू है और ये है मोलू. मोलू. हाँ, तो अब ये जो गोलू है इसको लगाएगा थप्पड़, है ना, F1. तो ये जो मोलू है, ये मोलू है ना, ये फिर से इसको थप्पड़ लगाएगा और बाद में ये रोते हुए घर को जाएगा, है ना. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. तो ये F1 है, ये F2 है. तो ये जो F1 should be F1 is equal to F21, है ना. मतलब यस सर. ये पहले ने दूसरे को मारा तो दूसरे ने पहले को मारा, है ना. ये जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है वही है अपना कौन सा लॉ? न्यूटन थर्ड लॉ. Third law of motion. F2 minus of F21, right? यस सर. क्लियर है? यस सर. Yes, sir. ओके, राइट. अब चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पे. राइट, रेडी? Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ, ये घर को चले गए. चलो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सॉल्व Yes, सम sir. प्रॉब्लम्स ऑन दिस लॉस. ये है अपना पहला प्रॉब्लम. a car moving with initial velocity (2 meters per second) gains 4 meters per second after time 4 seconds if mass of car is 2000 kg. Calculate force applied by engine. क्या ये मैं सॉल्व कर दूं? Sir, 1000 Newton. 1000? Newtons. Yes. Yes. जो आपने भेजा है रिकॉइल ऑफ अ गन, टग ऑफ वॉर. ओके, राइट ओनली. टग ऑफ वॉर एक्शन रिएक्शन नहीं है. टग ऑफ वॉर में हम दोनों साइड से खींचते हैं ना, तो वहां पे इक्विलिब्रियम हो सकता है, या तो फिर एक डोमिनेंट फोर्स हो सकता है. हाँ, रिकॉइल में हो सकता है. रिकॉइल इज द राइट आंसर. चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ बोलो, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कैसे सॉल्व करेंगे? गिवन देखो क्या क्या है. गिवन इनिशियल वेलोसिटी u is given 2 meter per second.
फाइनल वेलोसिटी इज आल्सो गिवन 4 मीटर पर सेकंड। ये आपकी जो लैम्बोर्गिनी है यहाँ पे है, देखो, है कि नहीं? हाँ, ये इनिशियली जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे ये बाद में कुछ फोर्स अप्लाई होने के बाद कितना, 4 मीटर पर सेकंड, और इसके लिए लगाया अपने को टाइम टी। तो टाइम टी इज आल्सो गिवन, टाइम टी इज इक्वल टू 4 सेकंड। ओके, नेक्स्ट m इज आल्सो गिवन 2000 kg, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? F फाइंड आउट करना है। F इज इक्वल टू व्हाट है? dp बाय dt है, समझो। उसके बाद ये जो dp है क्या होगा? pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t। तो ये pf क्या है रे? m इंटू v, है ना, फाइनल मोमेंटम। 1000 न्यूटन आ रहा है आंसर। ओके, चेक करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? देखो देखो, F इज इक्वल टू pf मीन्स mv माइनस pi मीन्स mu, है ना? तो यहाँ पे डायरेक्ट mu लिख दो। यस, mu डिवाइडेड बाय t। तो देखो m इंटू v माइनस u बाय t, m कितना है? 1000 है, और 2000 है, 2000। तो यहाँ पे 2000 ले लो, दिस इज 2000। p कितना? 4 माइनस u कितना? 2 डिवाइडेड बाय t कितना? 4। तो ये 2000 इंटू दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 4, ये चलेगा, कितना होगा? 1000 न्यूटन। यस, देयरफॉर F इज इक्वल टू 1000 न्यूटन, है ना? क्लियर है? Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. यस। ओके, तो अभी मैं 4 प्रॉब्लम होमवर्क को दे सकता हूँ। कैन आई गिव 4 प्रॉब्लम्स एज होमवर्क? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो। Sir, Homework for today, and number 1 problem, E1, Pf is equal to 30 kilogram meter per second. Pi is equal to question mark. Time t is equal to 2 seconds, and F is equal to 900 Newton. Next question, E1, M is equal to 2 kg, V is equal to 3 meter per second, U is equal to 1 meter per second, T is equal to 2 seconds. Then find out force and also find out acceleration. Acceleration is equal to V minus U by T. ये भी आपको करना है. Question number 3. F is given. F is 20 Newton. And delta P is equal to 4 kilogram meter second, kilogram meter per second, किलोग्राम मीटर पर सेकंड. आपको फाइंड आउट करना है टी. ओके, टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. और ये जो चौथा है, क्वेश्चन नंबर 4,
Sir, that 4 kg meter per second, what is it, sir? Delta P. Change in Momentum, sir. Delta P value means mv minus mv is there now. There you have to substitute this. Next one. Sir, PI full form, sir. Huh? PI full form is what, sir? PF means final momentum. PI means initial momentum. Okay. Okay, sir. Chalo next problem. So mass is not there, sir. Mass is not there, not necessary also. Okay. Okay, sir. Next one. A car is moving with initial speed 2 meters per second if its mass is 3000 kg and engine force is 4000 Newton. Calculate its speed after 4 seconds. ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है, समझ में आया कैसे कैसे करना है? 4 और एक दे दूं, 5 हो sir. जाता है, 5 पटाखा Yes, और sir. एक देता हूं, ठीक है, इजी वाला. m is equal to 20 kg, u is equal to 0, p is equal to question mark, t is equal to 2 seconds. कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. कैसे करोगे? आपको कुछ तो चाहिए ना. यहाँ पे Force. मैं मास देता हूँ, मास देता हूँ, मास दिया है ना. Mass you give, sir. एवरीथिंग इज देयर ना. Force. आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ना. नहीं नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा आपको. रुको, Force. एक काम करता हूं, मैं आपको देता हूं फोर्स देता हूं. हाँ, एफ इज ले लो आप 40 न्यूटन, है ना? राइट. अब कर सकते Okay, हो. Yes, sir. Yes, sir. ये 5 प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करो, गड़बड़ मत करो, इजी है, धीरे धीरे करो. ओके. Okay, sir. और थोड़ी देर के बाद भेजो. ओके, या तो फिर अभी भेजो, लेकिन पर्सनल मुझे भेजो, बाद में ग्रुप पे भेजो, ठीक है? Okay, sir. हाँ, Okay, sir. चलो तो रुकेंगे यहाँ पे. लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे. बाय. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank